Okay, good evening, brothers and sisters. सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। So, today we are doing Philippians chapter 3, verses 10 to 12. आज हम फिलिपियों का तीसरा अध्याय उसका 10 से 12 वचन का हम अध्ययन करेंगे। Yeah. So, we find that in Philippians we have read about the Apostle Paul. हमने फिलिपियों के पत्र में हमने प्रेरित पौलुस के बारे में देखा He said in verse 3 that we are the true circumcision. और उन्होंने तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में कहा कि हम जो हैं सच्चे खतने वाले हैं। And he says about three things: who worship in the Spirit of God, और हम फिर वो कहते हैं कि हम आत्मा की अगुवाई से आराधना करते हैं। that means we are not worshiping just like a routine, like but from our heart we are worshiping God. तो इसका ये मतलब है कि हम किसी रीति रिवाज के अनुसार नहीं कर रहे हैं आराधना, लेकिन हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से आराधना कर रहे हैं। We also offer our lives as a living sacrifice. That is also a worship. और हम अपने शरीर को भी एक जिंदा बलिदान के रूप में सौंपते हैं, जो एक सच्चा आराधना है। And then it's the second thing is that we don't we glory in Christ Jesus. That means we boast about Jesus. और हम जो हैं मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। All of us should boast about Jesus Christ. और हम जब भी हम घमंड करते हैं तो हमें यीशु मसीह पर घमंड करना चाहिए। That Jesus Christ should be something that we are excited about, happy about, and want to tell others, and because He is our life. और यीशु मसीह के बारे में हम दूसरों से बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन है। And then it says last thing, and put no confidence in the flesh. और अंत में कहते हैं कि और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। Meaning that we don't put value in what the world values it. तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो भी चीज संसार कीमती समझता है, हम उसे कीमती नहीं समझते। We don't value in just our education or our family or anything which the world thinks is great. हम अपने परिवार में या अपनी पढ़ाई लिखाई में जो दुनिया के लोग जिसमें घमंड करते हैं, ऐसी चीजों में हम नहीं घमंड करें। Even in our Bible knowledge and even in spiritual things, we don't glory in that. और हमारी जो आत्मिक बात है, जैसे बाइबल के बारे में जो हमें ज्ञान है, उसमें भी हम घमंड नहीं करते। Because Apostle Paul said, if I could glory in that, I would be the first in that. क्योंकि प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर कोई घमंड कर सकता है तो मैं हूँ ऐसा व्यक्ति जो उसमें घमंड कर सकता हूँ। So when he came to know about Jesus, he said that whatever things were gain, I count them as loss. लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सब वस्तुओं को की हानि उठाई मैंने। And then in verse 8 he says, I count all things to be loss for the knowledge, for the value of knowing Christ Jesus. और 8वें वचन में वो कहते हैं कि उन्होंने सब वस्तुओं की हानि उठाई ताकि वो यीशु मसीह को जान पाए। Brothers and sisters, that is a challenge for us, that do we count everything else in this world as loss so that we will know Christ, for the knowing Christ? क्या हमारे लिए भी ये एक चुनौती नहीं है कि हम सब चीजों, सब वस्तुओं की हानि उठाएं ताकि हम यीशु मसीह को जानें? Yeah. And then now in verse 10 we are coming to our topic today. और अभी 10वें वचन में हम अपने विषय पर आ रहे हैं। Everybody must listen to this particular session very carefully, आज का जो विषय है उसको आप ध्यान से सुने, because I think verse 10 could be the most central part of this chapter. और इस जो अध्याय का सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे जो केंद्र बिंदु है वो इसी वचन में हमें मिलेगा। This verse, if we have it in our lives, it will make a lot of difference.
अगर ये वचन हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में ये बहुत ही लाभदायक होगा, because it contains so many things in that. और इनमें बहुत सारे ऐसे चीजें छुपी हुई है। So verse 10 we read that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. 10वां वचन, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So the Apostle Paul earlier said that I count all things as loss for the surpassing value of knowing Christ. और पहले जो है प्रेरित पौलुस ने कहा था कि मैं सब चीजों को जो है मैंने सब चीजों का हानि उठाया है ताकि मैं यीशु मसीह को पहचानूं। And he had a very powerful conversion. और उनका जो एक बहुत अद्भुत जो है एक परिवर्तन उनके जीवन में हुआ था, more than any of us. हम सब से बढ़कर He heard the voice of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह का आवाज सुना He fell down from the horse. और एक घोड़े पे जो जिस पर वो सवार थे वो उसमें से उस पर से गिर गए। A bright light came from heaven upon him. और आकाश से एक बहुत तेज जो प्रकाश उनके ऊपर आया। That was his conversion. इस प्रकार उनका परिवर्तन हुआ। He heard the very voice of Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह का ही आवाज सुना। Not only once, but other times also. एक ही बार नहीं, लेकिन और कई बार उन्होंने यीशु मसीह का आवाज सुना। So we can say that he knew Jesus right from the beginning of his conversion. तो हम कह सकते हैं कि उनके परिवर्तन होने से के पहले से ही वो यीशु मसीह को जानते थे। And brothers and sisters, for us also, when we accepted Jesus Christ, we came to know Christ. जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तब हम यीशु को जानने लगे। For some of us, it was a gradual process. और हम में से कई लोगों के लिए ये जो धीरे धीरे वो आगे हम बढ़े उसमें। For some of us, it was like one day on a particular day we came to know Christ. और हम में से कई और के लिए जब एकदम एक साथ हमारा एक परिवर्तन हो गया। I trust that all of us have had that experience of knowing Christ. मुझे विश्वास है कि हम सबको यीशु मसीह को जानने का वो अवसर मिला है। So we are in the same category as Apostle Paul. तो हम सब प्रेरित पौलुस के समान हैं। That is, that we have come to know Christ. कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। See, if we do not know Christ, if we have only heard about Christ, that's a different thing. अगर हमने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना है और अगर हम उनको नहीं जानते हैं तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। If we know about Christ but do not know him personally, then we are not born again. अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, सिर्फ उनके बारे में हमने सुना है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। But if we have accepted Christ and we have surrendered our life and then he has come into our life, then we know him. अगर हमने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है और ने नया जन्म पाया है, तो हम जो है यीशु मसीह को जानते हैं। So now verse 10 says, the Apostle Paul is saying that I may know him. और 10वें वचन में वो कहते हैं कि मैं उन्हें जानूं। That means he knew Christ, he had a powerful experience of conversion, but he's telling that in his life he wants to know him. तो उनका जो जब जीवन में परिवर्तन हुआ तब वो यीशु मसीह को जाने, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। That means he wants to know Jesus more. He's not satisfied with that initial knowledge, but he wants to know Jesus more and more. जो शुरुआत में उन्हें ज्ञान मिली थी यीशु के बारे में, उससे वो तृप्त नहीं है, वो अभी और भी उन्हें जानना चाहते हैं। See, when we meet a person for the first time,
जैसे हम किसी से पहले बार मिलते हैं, we get to know something about them. हम थोड़ा बहुत उनके बारे में हमें ज्ञान मिलता But है, if we are most of the time with them, then we know more about them. लेकिन अगर हम उनके साथ समय बिताएंगे और तो हम उनको और भी जानेंगे। So we can all understand that. तो ये तो हम सब समझ सकते हैं। That is the way that we have got to know Jesus. इस प्रकार हमें यीशु मसीह को जानना है। That means unless we are spending time with Him and in prayer and in Bible reading and other things, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक हम उनके साथ प्रार्थना में या वचन के पढ़ने में हम समय नहीं बिताते and we have that eagerness in our heart to know Him more, और हमारे अंदर वो लालसा है कि हम उन्हें और जानें, then our knowledge of Jesus will become more and more. तब हमारा जो है उनके बारे में, जो यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान है, वो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। This is, brothers and sisters, this is very important. Otherwise, we will know Christ initially and then be stuck in a religion. तो नहीं तो क्या होगा कि हम यीशु मसीह को शुरुआत में जो हमें जानकारी मिली है उसी में हम रह जाएंगे और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे We will be in a religion और हम एक धर्म में रह जाएंगे without getting to know Him. और हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में नहीं जान पाएंगे। But the beautiful thing in our Christian life is that we can know Jesus more and more. लेकिन एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से हम उन्हें जान सकते हैं। Let me ask this, that when you came to know Christ and now, maybe it must be 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, do you know Jesus more? मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जब पहले बार यीशु के बारे में सुना और यीशु को स्वीकार किया, तब से आज तक शायद 5 साल गुजर गए या 10 या 15 या 20 साल गुजर गए, तो अब भी आप यीशु मसीह को उसी तरह जानते हैं कि और उन्हें आप जानने लगे हैं? Have we come to know His nature, His character? क्या हम उनके जो चरित्र हैं और उनके जो स्वभाव है उसे हम समझते हैं? How do we come to know? Through the Word of God. और कैसे हम उसे पहचानेंगे? वो है पवित्र शास्त्र या पवित्र वचन के द्वारा। Through our fellowship with Him in prayer. उनके साथ हम संगति में जब प्रार्थना करते हैं And living this life, we come to know more about the nature of Jesus and character of Jesus. और जैसे हम इस जीवन को जिएंगे तब हम यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र को पहचान पाएंगे। And then we also know what great things He has done for us. और फिर हम जानेंगे कि उन्होंने हमारे लिए कितने अद्भुत कार्य किए हैं। Bible says that we should not neglect so great a salvation. वचन में ऐसे लिखा है कि हमें जो एक बहुत एक महान जो उद्धार हमें मिला है, इसे हमें ठुकराना नहीं चाहिए। Why does it say so great a salvation? क्यों ऐसे कहा गया है कि ये बहुत ही अद्भुत या महान उद्धार है? Is it only just being forgiven of our sins? क्या ये सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के बारे में कहता है? Is it only our knowledge that Jesus died on the cross and He rose again? और क्या सिर्फ यही हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए? Brothers and sisters, it is much, much more. भाइयों और बहनों, इससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर ये विषय है। The Apostle Paul got so much of revelation, and God wants to give us revelation about Jesus. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें यीशु मसीह के बारे में और भी हमें एक व्यक्तिगत रूप में हमें ज्ञान दे। Paul said about Christ, the mystery of Christ. और प्रेरित पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह के रहस्य के बारे में। So do we have a hunger to know the mystery of Christ? क्या हमारे अंदर वो भूख है कि हम इस रहस्य को जानें? Brothers and sisters, I would encourage each one of you to search after the mystery of Christ. मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सबको जो है इस रहस्य, यीशु मसीह के रहस्य को ढूंढना चाहिए। So
it is one of the greatest desires that we can have, the desire to know Jesus more. और ये एक ऐसी लालसा है जो सबसे जो उत्तम लालसा है कि हम यीशु मसीह को और जानें. So if you have not had this desire so far, today is the day that we can pray that, Lord, I want to know Jesus more. तो अगर आपने यीशु मसीह को इस रूप में नहीं जाना है तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए आज की, प्रभु मैं आपको इस तरह से जानना चाहता हूँ. It's a wonderful thing to know Jesus more and more. ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह को और जानें. Our heart will be filled with more and more joy as we know our Savior and our friend. और हमारा जो दिल है वो आनंद से भर जाएगा जब हम यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता और दोस्त के रूप में जानेंगे. So that was the desire of the Apostle Paul in saying in verse 10. और ये जो है उनकी अभिलाषा थी जो 10वें वचन में बताया गया है. And then it says, the next thing he says in that verse, and the power of his resurrection. और दूसरी बात जो कही गई है वो है उसके मृत्युंजय की सामर्थ की. So the word of God speaks about the power of his resurrection. और जो वचन वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है उसके बारे में कहता है. Nobody rose from the dead. कोई भी मृत्यु से जी नहीं उठा. Jesus raised people from the dead. यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया. But later on they died again. लेकिन फिर से वो मर गए. But only Jesus, the tomb was where he was buried was broken and he came out. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ऐसा हुआ कि जहां वो गाड़े गए वहां से वो जिलाए गए. So that because there was no sin in him, death could not keep him under the grave. क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था, इसीलिए मृत्यु यीशु मसीह को अपने अधीन में ना रख पाए. So the Bible says the death he died to sin. तो वचन में ये कहा गया है कि जो मृत्यु का उन्होंने अनुभव किया वो पाप के विषय में था. So if we died to our sin, तो जब हम अपने पापों के प्रति हम मर जाते हैं, we will experience the resurrection power. तो तब हम उस सामर्थ्य का, पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे. And one of the truths that can really encourage us is to know in ourselves that Christ rose from the dead. और एक ऐसा सत्य जो हमें उत्तेजित करेगा वो ये है जब हम उस सामर्थ्य को जो जिसने यीशु मसीह को जिलाया उस सामर्थ्य को अगर हम जानेंगे. Because of Jesus' resurrection from the dead, our Christian life has got a future. तो क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ इसीलिए हमारे लिए भी एक सुंदर भविष्य आगे हम देख सकते हैं. That is, we all will rise one day. कि हम सब मुर्दों में से जिलाए जाएंगे. Otherwise, as Paul says in 1 Corinthians chapter 15, नहीं तो जिस प्रकार प्रेरित पौलुस पहले कुरिन्थियों का 15वें अध्याय में कहते हैं, it says, if verse 32, 1 Corinthians 15:32, पहला कुरिन्थी 15 का 32, if the dead are not raised, let us eat, drink, tomorrow we die. यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे. That is how the world lives. तो ये दुनिया के लोग ऐसे ही जीते हैं. The world lives saying that they don't have a hope for the future. दुनिया के लोग ऐसे ही जीते हैं क्योंकि उनके लिए आगे या भविष्य में उन्हें कोई भी आशा नहीं दिखाई देती. But for a Christian, we have a future. लेकिन हमारे लिए एक भविष्य है.
That's why we don't live on the principle of eat, drink, for tomorrow we'll die. तो इसीलिए हम इस जो है सिद्धांत पर नहीं जीते कि खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। We live because Jesus Christ has done so much for us and we want to live unto Him. तो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने अद्भुत कार्य किए हैं, इसीलिए जो जीवन हम जीते हैं वो हम यीशु मसीह के लिए ही जीना चाहते हैं। Also, because Jesus rose again, we are justified. और क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए हम भी धार्मिक ठहराए जाते हैं। This is another important truth in Romans chapter 4, verse 25. और रोमियों का 4 अध्याय और उसका 25वें वचन में हम एक बहुत ही अद्भुत सत्य को देखते हैं। Romans 4:25 says, "He who was delivered up for our transgressions and was raised for our justification." और रोमियो 4 का 25 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। See, justification means that God has justified us, saying that now you are righteous. God is telling all of us that we are righteous. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब ये है कि परमेश्वर हम हर एक से ये कहता है कि तुम धर्मी ठहराए गए हो। Not only you are forgiven because of the blood of Jesus, सिर्फ जो है आपके पापों का क्षमा नहीं हुआ है, not only that, which is a great thing, that our sins are forgiven, सिर्फ वो ही नहीं हुआ है, but that God is saying that we are righteous. लेकिन He has accepted परमेश्वर us. He कहते has हैं- accepted us as righteous. परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है और हमें वो धर्मी ठहराते हैं। He doesn't consider us as sinners. वो हमें पापी के रूप में नहीं देखते हैं। Why? Because of our faith in Jesus, the righteousness of God has been given to us as a gift. और क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो धार्मिकता है वो हमें एक देन के रूप में दिया गया है। Wonderful thing that God has done. To all who believe in Christ, जो भी God यीशु give- मसीह पर विश्वास करते God हैं, gives a gift of the righteousness of God to us. तो वो ऐसे लोगों को अपना जो धार्मिकता है वो एक दान के रूप में देते हैं। That is the righteousness of Christ. वो यीशु मसीह का धार्मिकता। But if Jesus did not rise from the dead, अगर यीशु मसीह जिलाए नहीं जाते, then it shows that Jesus also had sin. तो वो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह में भी पाप था, Because everybody who sins dies. क्योंकि जो भी पाप करता है वो मरता है। But Jesus had no sin, that's why he rose again. क्योंकि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं थी, इसीलिए वो जिलाए गए। And our sin was put on Jesus and his righteousness was given to us. इसीलिए हमारा जो पाप है वो यीशु पर डाला गया और उनकी जो धार्मिकता है वो हमें मिला। So, brothers and sisters, when we die to our sin, then we get a resurrection power, a resurrection life. जब हम अपने पापों की और हम मरते हैं तो हमें जो है जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें मिलता है। We'll come to this a little later. और इसके बारे में हम बाद में भी देखेंगे। So the next one in verse 10 is that and see there are and in each place it says and the fellowship of his sufferings. और यहाँ इस वचन में हम बार-बार और जो वचन है इसका प्रयोग किया गया है, हम देखते हैं यहाँ और Yeah. So we saw that the importance of knowing Jesus more and more. पहले हमने देखा कि यीशु मसीह को जानने की जो महत्व है उसके बारे में। Then the importance of the power of his resurrection. और फिर उनकी जो मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानने का, which works in our lives. जो हमारे अंदर कार्य करता है। In each Christian's life, the power of Christ's resurrection works. हम हर एक मसीही के जीवन में इस जो सामर्थ्य का कार्य होता है। That's why we are able to be overcomers. इसीलिए हम विजयी हो सकते हैं। Okay.
And then it says, and the fellowship of his sufferings. और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। The Apostle Paul wants to have the fellowship of Christ's sufferings. जो प्रेरित पौलुस हैं वो यीशु मसीह के जो दुखों में सहभागी होना चाहते हैं। Christ was already in heaven when the Apostle Paul came to became a Christian. जब प्रेरित पौलुस विश्वास में आए तब यीशु मसीह स्वर्ग में थे। But he's saying that I want to have the fellowship of Christ's sufferings. लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। When you think of the Christ's sufferings, many of us may think that Christ's suffering is only what he suffered on the cross. और ये हो सकता है कि हम में से कई सोचते होंगे कि जब हम यीशु मसीह के दुख सहने के बारे में कहते हैं तो सिर्फ जो दुख उन्होंने क्रूस पर सहा उसके बारे में हम कह रहे हैं। Brothers, that is not the only suffering that Jesus had. लेकिन सिर्फ उसी दुख का उन्होंने सिर्फ उसी दुख को नहीं उठाया उन्होंने। Jesus said that we must daily take up our cross and follow him. यीशु मसीह ने कहा कि हमें रोज अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। So when taking up the cross is not a very pleasurable thing. There is pain in that. क्रूस उठाना एक बहुत ही एक जिससे हमें अच्छा महसूस होता है ऐसी बात नहीं है, इससे हमें कष्ट होता है। Now, if Jesus said that we must take up our cross daily, अगर यीशु ने कहा है कि हमें अपना क्रूस रोज उठाना है, did he take up his cross in his life? क्या उन्होंने अपना क्रूस उठाया रोज? He would not preach anything which he has not practiced. जो उन्होंने अपने जीवन में लागू नहीं किया उसके बारे में वो कभी प्रचार नहीं करते। He himself took up his cross. उन्होंने खुद अपना क्रूस उठाया। And he tells us as disciples to take up our cross. और हम उनके शिष्य होने के कारण वो हमसे कहते हैं कि हमें भी अपना क्रूस उठाना है। Now an example of this is in 1 Peter chapter 2. इसका एक उदाहरण हम पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। Verse 23. दूसरे अध्याय का 1 Peter 23वां वचन। 1 Peter chapter 2 verse 23. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 23वां वचन। It says, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 23वां वचन, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। This was not at the time of the cross only, it was time throughout his life. ये सिर्फ जब उन्हें क्रूस पर वो का दुख उन्होंने उठाया तब की बात नहीं है, उससे पहले भी उन्होंने ये महसूस किया। In his very home, even his brothers did not believe in him. उनके खुद के घर में भी, परिवार में भी उनके भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया। They misunderstood him. उन्होंने उन्हें गलत रीति में देखा। Maybe in his neighborhood, people must have insulted him. और उनके पड़ोसियों ने शायद उन्हें उनका जो है निरादर किया। So it says, when he was reviled, when people were insulted, humiliated, he did not revile in return. और जब उन्होंने गाली सुनी तो उन्होंने गाली नहीं दिया बदले में। See, whenever we are insulted, when people say about our father, our mother, about our children, we feel very hurt. जब लोग हमारे माता पिता के बारे में या अपने बच्चों के बारे में गाली देते हैं तो हमें बहुत चोट लगती है। And then what we feel like saying is, no, your family also like this. तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भी परिवार ऐसा ही है। That is what naturally comes out. ये एक स्वाभाविक रूप में यही हम सब में होता है। So when we say that, we get some relief. तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें कुछ चैन मिलता है। Because they say, I'm not taking it, I'm giving it back to him.
तो क्योंकि हम कहते हैं कि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, मैंने उसको बदला दिया। But, brothers and sisters, that's not the way Jesus lived. लेकिन भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He, when he was insulted, he did not insult back. जब लोगों ने उन्हें गाली दिया तो उन्होंने गाली बदले में नहीं दिया। He looked to the Father उन्होंने अपना आंख परमेश्वर and पिता की ओर and उठाया and he would have said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. और उन्होंने कहा कि पिता उनको क्षमा करो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। And then he bore that suffering. It says the word suffering. तो यहाँ जो है कहा गया है कि उन्होंने दुख उठाया। Brothers and sisters, this is the fellowship of Christ's suffering. तो यही है जो यीशु मसीह के दुख में हमें सहभागी होना, Which we get to experience every day in our life. और हर दिन हमें इसे महसूस करने का मौका मिलता है। Maybe at home we will have an experience. ये अनुभव हमें शायद घर में मिले, Maybe between the husband and wife. पति पत्नी के बीच में हो सकता Maybe है। the husband may speak something which are very hurting to the wife, and the wife will bear that pain. शायद जो पति है वो बहुत ऐसे बात कहता है जिससे पत्नी को चोट लगती है, लेकिन वो सह लेती है उसे। And we are doing it just like Jesus. We are entrusting it to the Father. और हम यीशु मसीह के समान जो पिता जो न्यायी है उन्हें हम वो सौंप देते हैं, And like Jesus, we are forgiving from our heart, और हम अपने हृदय से उन्हें क्षमा करते हैं, and we are praying and blessing the one who has hurt us. और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। That is the fellowship of Christ's sufferings. यही है जो यीशु के दुख में सहभागी होने का This मतलब can है। happen at the home, in the church, in our workplace, everywhere. ये जो है हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे दफ्तर में हो सकता है, हर जगह, कलीसिया में हो सकता है, हर जगह ये हो सकता है। This message is not preached in many places, ये जो विषय है इसके बारे में सब जगह नहीं प्रचार किया जाता। but this very message is the one which makes us a better Christian. तो लेकिन यही ऐसा सत्य है जो हमें एक बेहतर मसीही बना सकता है। This is the only way to become more like Jesus. तो इसी इसी प्रचार से हम यीशु मसीह के अनुरूप बन सकते हैं, Because the same suffering that he underwent, we are also experiencing him, and we are having a fellowship. और क्योंकि यीशु मसीह ने जो दुख उठाए उसी को हम भी अनुभव कर रहे हैं। But what happens is the power of resurrection gives our life peace and joy. और जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो हमें शांति और आनंद देता है। Okay, we'll see one verse in first very important verse in Second Corinthians chapter 4 verse 10. हम एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय और उसका 10वां वचन। So remember this verse, First Peter chapter 2 verse 23. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 23वां वचन आप याद रखें। And Second Corinthians chapter 4 verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों का चौथा अध्याय और उसका 10वां वचन, Because these are life-changing verses. क्योंकि ये हमारे जीवन को बदल सकता है, ऐसे वचन हैं। It says, always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in us. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Okay, so the Apostle Paul is saying about the dying of Jesus. It's not about the dying on the cross. यहाँ जो यीशु की मृत्यु के बारे में कहा गया है वो क्रूस पर मरने के बारे में नहीं है, Because he's talking about after Jesus is in heaven, he's talking about the dying of Jesus. यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, उसके बाद वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। He's talking about the dying process which Jesus lived in his 33.5 years. जो उन्होंने अपनी 33 साल जो उन्होंने इस दुनिया में बिताए, तब जो उन्होंने सामना किया उसके बारे में वो कह रहे हैं। You never, throughout his life, you never heard him insulting anybody or speaking badly and hurting people.
जब वो इस दुनिया में थे तब हमने ये उनके बारे में नहीं सुना कि उन्होंने किसी को गाली दिया, किसी को चोट पहुंचाया। ये सब बातें हमने उनके बारे में नहीं सुना है। And because of that wonderful life of his, he would only say, "Fear not," and take courage, and very encouraging words he used to say. और जब भी वो कुछ भी बोलते थे तब वो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहते थे, जैसे भयभीत ना हो। Brothers and sisters, we'll also be able to say those words from our heart when we have the fellowship of Christ's sufferings and bear the dying of Jesus. और जब हम इसी रूप से जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में रहते हैं, उनके दुखों में हम भागी हो जाते हैं, तब हम भी ऐसे ही वचन लोगों से कह पाएंगे। It says, always carrying about in the body the dying of Jesus. और यहाँ कहा गया है कि हर समय यीशु की मृत्यु को लिए फिरना। It's not only for Sunday. On Sunday we carry the dying of Jesus, or on some particular days of the meeting. और ये ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ रविवार को जब हम कलीसिया में आते हैं तब हम यीशु की मृत्यु, या जहाँ भी हम प्रचार सुनने के लिए जाते हैं तब हम यीशु की मृत्यु को लिए फिरें। But 24/7. लेकिन 24 घंटे हमें, Say at 3 o'clock in the night we get a phone call. सोचो कि आपको 3 बजे रात को एक फोन कॉल आता है। 3 o'clock means we are fast asleep. 3 बजे रात को हम गहरे नींद में हैं। Maybe somebody calls and it may be a call like a missed call, or it may be a fake call. ये कोई ऐसा झूठा कॉल या कुछ गलती से किसी ने फोन लगाया है। Or it may be a call where some a brother or sister or somebody whom we know is telling us something. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहन या भाई जिसे हम जानते हैं वो हमें कुछ बता रहे हैं। And we should not be disturbed if we are carrying the dying of Jesus. That is the calling the dying, always carrying about in the body the dying. We are serving Jesus, so we are not feeling anything about that. तो इसके बारे में हमें ऐसे बेचैन नहीं होना है जब हम ऐसे हमें कॉल मिलता है, क्योंकि हम हर समय यीशु मसीह के मृत्यु को लिए फिर रहे हैं। See, the Lord is leading us. He's helping us. We may not do it initially, but the Lord is leading us to a higher life. तो यीशु मसीह जो है हमारी अगुवाई कर रहे हैं इस बात में। पहले बार हम शायद ऐसा ना कर पाए, लेकिन प्रभु हमें ऐसा हमारा अगुवाई करता है कि हम आगे जाकर हमारे अंदर वो बदलाव आए। So, brothers and sisters, this is the fellowship of His sufferings. यही है जो उनके कष्ट में सहभागी। So, like Paul, we can pray, Lord, I want to know you. I want to know the power of your resurrection. I want to know the fellowship of your sufferings. तो जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ और उनके कष्ट में सहभागी होना चाहता हूँ, वैसे ही हम भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। So, and then it says, and being made conform to his death. और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। So when the sin that which tries to come out in us, we deny it, then we are dead to sin. जब जो भी पाप हमारे अंदर उठकर वो बाहर आना चाहता है, जब हम उसे मार देते हैं, उसका इनकार करते हैं, तब जो है हम उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करते हैं। So, brothers and sisters, this is the verse 10, which is a very powerful verse, which can really make a difference in our life. तो ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है जिससे हमारा जीवन में एक बदलावट आ सकता है। May God help us to have a revelation of this and understanding of this, and may our hearts long to be like this. और परमेश्वर भी हमें इसके बारे में प्रकटीकरण दे और हमारी भी ऐसी ही लालसा हो कि हम इसे समझ पाएं। Amen. Amen.